Assalamualaikum candidates. In this video, most important 100 MCQs on topic of genetics are discussed. These MCQs are very important for the examination of NMD CAT and also BPSC and all other board exams. इस वीडियो के अंदर जो MCQs डिस्कस किए गए हैं वो सॉल्व भी किए गए हैं. आइए देखते हैं जो सॉल्व नहीं है उनको हम साथ साथ सॉल्व करते हैं. आप लोग इन MCQs को अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं. तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं. पहला क्वेश्चन है हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स ऑल एक्सेप्ट. तो इसका आंसर है डेल्टा प्रोटीन्स टू बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन दैट इज न्यूक्लियोटाइड्स जीन्स अलील न्यूक्लियोसाइड. तो इसका आंसर बीटा होगा जीन. क्वेश्चन नंबर 3 DNA stores all sort of information coded in the sequence of bases, means that nucleotides, nitrogen bases. The position of gene on chromosome is called its locus. इसका आंसर बीटा है. Mendel was born in 19th century. तो मेंडल की जो बर्थ है वो 1822 में है, तो डेफिनेटली ये 19th सेंचुरी कहलाएगी. Are responsible for producing inherited resemblance and differences. The right answer is genes. Charlie. Partner of gene pair is called allele. इसका आंसर भी चार्ली है. Homolog means a single homochromosomes, यानी कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेयर होता है उसमें हर एक क्रोमोसोम को होमोलोग कहते हैं. 9 है both alleles of a gene on one locus are always similar, always different, may be similar, different, none of these. इसमें चार्ली आंसर है, may be similar. क्वेश्चन नंबर 10 appearance of trait is called phenotype. इसका अल्फा. क्वेश्चन नंबर 11 appearance of trait depends on genotype. इसका आंसर बीटा होगा. 12 genotype of an individual is genetic complement, genes in an individual, his genome, gene pool. तो इसका आंसर अल्फा है, genetic complement. Question number 13 a flower is red, the redness is due to genotype. तो रेडनेस जीनोटाइप की वजह से है, रेडनेस फिनोटाइप है, लेकिन इसके पीछे जो इसका काज है वो जीनोटाइप है. 14 who is the father of genetics. इसका आंसर होगा मेंडल, चार्ली. 15 Mendelian factors are called elementals. इसका आंसर बीटा होगा. 17 a dihybrid heterozygous individual forms how many gametes. इसका राइट आंसर होगा 4. For study of genetics, Mendel has worked on Pisum sativum. Right answer delta. 18 Mendel has selected pea plant because. इसमें से आपने wrong option जो है वो पिक करना है. That is Charlie, long generation time, क्योंकि जो pea plant था उसका generation time short. Number 19 organisms on self fertilization always produce identical to themselves are called true breeders. Number 21 Mendel has studied how many traits in pea plant. ट्रेड कितने स्टडी किए थे, वो थे 7. Question number 21 if homozygous dominant and heterozygous round plants are crossed in F1 result will be all round alpha. 22 if heterozygous round seed crossed with homozygous sessile seed plant, the result in F2 will be 50% round. 23 Mendel has proposed that each trait controlled by particular hereditary factor that is called elemental. जो recently हम इसको अब gene. Question number 24 according to law of segregation during zygote formation alleles unite at random fertilization.
Question number 25. In test cross, an individual showing dominant phenotype is crossed with individual showing recessive phenotype. जिसका आंसर होगा अल्फा. Question number 26. F2 wrinkled when self-crossed produce only wrinkle set Charlie. 27 is the chance of an event to occur, that is probability. इसका आंसर बीटा है. Number 28. Number of chromosome in pea plant are 14 Charlie. Question number 29. Mendel's work remained neglected for 36 years. Question number 30. Mendel has studied how many traits of pea plant limited on how many chromosomes? 4. 31. Albinism is a recessive trait. Two normal parents have albino child. What is the probability in next child? 50%. इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. टू नॉर्मल पेरेंट्स हैविंग एल्बिनो चाइल्ड. आपको पता होना चाहिए कि जो एल्बिनिज्म है एक रिसेसिव ट्रेट है. तो दो नॉर्मल पेरेंट्स हैं तो उनमें हम इसको कैपिटल ए स्मॉल ए से ज़ाहिर कर लेते हैं, फिर कैपिटल ए स्मॉल ए. तो इसमें 50% चांसेस होंगे एल्बिनो के, बल्कि 50% नहीं, इसमें होंगे 25% चांसेस. तो इसका आंसर होगा अल्फा. 32. Mendel is famous for his work on Pisum sativum. इसने pea plant. An organism's genetic constitution is called its genotype. Alpha. 34. An organism with identical alleles for a given trait is called as homozygous या homozygote individual. Question number 35 है what type of gametes will formed by genotype capital R, small r, capital Y, small y. तो इसका आंसर होगा अल्फा. इसके 4 गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई. 36. The genotypic ratio of F2 progeny when monohybrid homozygous pea plant were crossed by Mendel. तो मोनोहाइब्रिड होमोजाइगस यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो राउंड और रिंकल का क्रॉस करवाया. तो F2 में वो पूछता है कि उसकी रेशियो क्या होगी, जीनोटिपिक रेशियो क्या होगी. तो डेफिनेटली उसमें जीनोटिपिक रेशियो जो है ना F2 में वो 1:2:1 होगी. चार्ली आंसर. Question number 37. In dihybrid cross, out of 16 plants obtained, the number of genotype will be 4 different kinds के जीनोटाइप बनेंगे. इसमें इसका आंसर होगा अल्फा. 38. Which of the following repeats the Mendel's dihybrid ratio? मेंडल की डायहाइब्रिड रेशियो क्या थी, वो बीटा. आंसर इसका है 9:3:3. 39. Pure homozygous offspring in a dihybrid cross in F2 generation will be 1/16. Delta answer is. Number 40. Self cross between capital T small t and capital T small t will result in genotype ratio. इसमें जो रेशियो है वो जीनोटिपिक रेशियो 1:1 रेशियो आएगी. बीटा. Number 41. In monohybrid cross 140 plants are obtained. The ratio of homozygous and heterozygous will be. इसका आंसर होगा 90 और 30. Delta. 42. How many different types of genetically different gametes are produced by heterozygous plant having genotype capital A, capital B, small b, capital C, small c. इसके लिए आप क्या करें, आप कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी के गैमेट्स बना लें. जैसे आप कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के बनाते हैं तो ये 4 बन जाएंगे. 4 इसमें बनेंगे कैपिटल सी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी और स्मॉल सी. इन सब के साथ आप ये जो एक पेयर है कैपिटल ए का, इसमें से एक सब के साथ एक कैपिटल ए लगा दें तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स के बनेंगे. इसका आंसर होगा बीटा.
Question number 43. Mendel conducted an experiment on garden pea for how many years? इसका right answer 7 year है. 44. Select the incorrect matching. Round versus wrinkle, yellow versus green, violet versus white. तो यहाँ पे आना था पर्पल वर्सेस व्हाइट. तो इसका चार्ली आंसर जो है ना वो थर्ड आंसर जो है. Question number 45. In Mendelian dihybrid cross, how many individuals are homozygous recessive for one of the character only in F2 generation? डाईहाइब्रिड क्रॉस में कितने ऐसे इंडिविजुअल थे जो होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट रखते हैं फॉर ओनली वन ट्रेट? तो एक ट्रेट के रेफरेंस से आपने देखना है होमोजाइगस रिसेसिव फॉर वन कैरेक्टर. तो आप इसमें जो पुनेट स्केयर है 16 का, उसमें से आप इनको सर्च आउट करें और आपको पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ वन ट्रेड के लिए रिसेसिव हैं. तो ये तकरीबन ये 6 आंसर आएगा, 6/16. In Mendelian dihybrid cross, how many individuals are heterozygous of both characters in F2 generation? यानी कि डाईहाइब्रिड जो उसका पुनर् स्केयर था उसमें आपने देखना है कि राउंड और येलो दोनों में हेट्रोजाइगस हो. मतलब अगर वो राउंड है तो कैपिटल आर स्मॉल आर, अगर येलो है तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई. इस तरह के आपने टोटल हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल देखने हैं. तो वो थे 4/16. 7. In Mendelian dihybrid cross, how many of progeny in F2 generation possess genotype small r small r small y? तो वो था 1/16. Question number 48. How many genotypes are formed in Mendelian dihybrid cross? Question number 49. The below diagram shows, ये आपके सामने एक डायग्राम है, इसमें आपने बताना है कि कौन सा क्रॉस है. ये एक्चुअली मोनोहाइब्रिड क्रॉस है. Question number 50. In above diagram, जो पीछे डायग्राम दी थी, टोटल होमोजाइगस इंडिविजुअल आर इन F2 जनरेशन. F2 जनरेशन में होमोजाइगस इंडिविजुअल कितने थे? तो वो थे 2. एक था दोनों कैपिटल जी और एक था दोनों स्मॉल जी. इन above डायग्राम होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस की रेशियो कितनी थी? 2:2. 52. Naturally, a flower of pea plant is monoecious, इनके इसको hermaphrodite कहते हैं. To 53. Separation of gene is called, actually इसको कहते हैं segregation. Question number 54. Law of purity of gametes, इसको कहते हैं law of segregation. यानी कि जो मुकम्मल तौर पर जिसमें गैमेट्स जो ना वो एक दूसरे से अलग होते हैं और फर्टिलाइजेशन के दौरान दोबारा से आपस में यूनाइट करते हैं, इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. 5. Question number. Mendel laid the foundation of classical genetics. 56. The height of short pea plant used by Mendel, जो मेंडल ने पी प्लांट यूज किया था उसकी हाइट तकरीबन कितनी थी? तकरीबन उसकी हाइट 18 इंचेस थी. 57. Full name of Mendel was Gregor John Mendel. 58. Which of the following character was not studied by Mendel in pea plant? उसमें फ्लावर की शेप स्टडी नहीं की गई थी, बाकी सारे कैरेक्टर्स में हैं. क्वेश्चन नंबर 59. Tall pea plant always has round seeds. इसका आंसर डेल्टा. नंबर 60. Mendel was native of Austria. मेंडल ऑस्ट्रिया का रहने वाला था, तो ये इसका आप कह सकते हैं कि बर्थ प्लेस भी है. क्वेश्चन नंबर. Different alleles of a gene that are expressed in heterozygous conditions are called. heterozygous condition में different gene जो appear होती हैं उसको कहते हैं कोडोमिनेंस. Different alleles of a gene that express in heterozygous, यानी कि दोनों allele जो है ना वो express हो जाती है, उसको कोडोमिनेंस. Question number 62. Effect of an allele over its partner allele on the same gene locus called as dominance. Number 63. Which one is Mendelian trait? इनमें से कौन सा Mendelian trait है? Shape of leaves, color of leaves, color of seeds, position of branches. इसमें जो सही आंसर है वो color of seed है, चार्ली. 64. The true breeding organisms for a particular trait is called.
ट्रू ब्रीडिंग इंडिविजुअल को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं होमोजाइगस इंडिविजुअल। तो वो किसी पर्टिकुलर ट्रेड के लिए क्योंकि वो होमोजाइगस होगा तो ही उसका नेक्स्ट ट्रेड जो ना वो वैसे ही रहेगा जैसे वो पेरेंट। क्वेश्चन नंबर 65, a phenotypic of heterozygote is distinct in quality from two homozygote। ये है ओवर डोमिनेंस, इनके दो अपने हेटेरोजाइगोट से उसमें जो क्वालिटी है वो वाज़ेह हो, उसमें से डिफरेंट हो मुकम्मल तौर पर, तो उसको कहते हैं ओवर डोमिनेंस। क्वेश्चन नंबर 66, इफ अ जीन हैज मोर देन 2 alleles, तो उसको हम मल्टीपल एलील का नाम देते हैं। मल्टीपल एलील्स की तादाद 3 या मैनी हो सकती है, इसकी तादाद 300 तक भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी। अगर 2 हैं तो वो उसको हम मल्टीपल एलील नहीं। क्वेश्चन नंबर 67, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इज अंडर द कंट्रोल ऑफ 3 जीन्स, 3 alleles, 2 alleles, 2 जीन्स। तो इसका आंसर होगा 3 alleles, कैपिटल IA, कैपिटल IB और स्मॉल आई, यानी कि इसको कंट्रोल करने वाली 3 alleles। Number 68, genes that control ABO blood group system present on chromosome number 9। तो ये 9 नंबर क्रोमोसोम पे पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। यूनिवर्सल डोनर आर द पर्सन्स हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी, सॉरी पहले है बी, फिर ए बी, फिर ए और फिर ओ। यूनिवर्सल डोनर ओ कहलाता है और ओ में भी ओ नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर है 71, द नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग्स आर। ऑटोसोम कितने हैं ह्यूमन में? 44, यानी कि टोटल क्रोमोसोम 46 हैं, उसमें से जो ऑटोसोम हैं वो 44 हैं। क्वेश्चन नंबर 71, ये 72 क्वेश्चन है। द नॉर्मल आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला दैट इज अ रेड कलर। जो ड्रोसोफिला का नॉर्मल आई कलर है वो उसका कलर रेड है। तो जो म्यूटेंट है उसका वाइट होता है और जो नॉर्मल है वो। नंबर 72, टर्नर सिंड्रोम इन ह्यूमन फीमेल्स इज ड्यू टू टर्नर सिंड्रोम 1 मिसिंग एक्स क्रोमोसोम, यानी कि अल्फा। 73 क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम इन ह्यूमन इज ड्यू टू एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, ऑटोसोम क्रोमोसोम, यानी कि 21 क्रोमोसोम इसमें एक्स्ट्रा पाया जाएगा। तो इसका आंसर होगा चार्ली। इसका राइट आंसर क्या होगा? चार्ली, एन एक्स्ट्रा। Question number 74, a well-known example of multiple alleles in a human being is that of blood group। इसका आंसर होगा। नंबर 75, RH stand for। RH की मीनिंग क्या है? इसका रेहेसिस फैक्टर से ये निकला है। ये रेहेसिस मंकी से लिया गया था, पहले सबसे पहले इसमें डिस्कवर हुआ था, तो RH से मुराद यहाँ पे रेहेसिस। क्वेश्चन नंबर 76, suppressive influence of any genetic factor on another that is not its allele is called epistasis। एपिस्टेसिस क्या है? एक जीन का किसी दूसरे जीन के ऊपर इफेक्ट है जो कि उसकी अलील ना हो, यानी कि ये नॉन अलीलिक इफेक्ट है। एक जीन या अलील कहीं और है, दूसरी जीन या अलील कहीं और। द मल्टीपल इफेक्ट ऑफ अ सिंगल जीन और अलील आर टर्म्ड एज प्लेयोट्रॉपी, यानी कि अगर एक सिंगल जीन है उसके इफेक्ट एक से ज़्यादा हैं, दो हैं, दो से ज़्यादा हैं, तो ऐसी जीन को प्लेयोट्रॉपी कहते हैं, इस प्रोसेस को प्लेयोट्रॉपी कहते हैं और जीन को कहते हैं प्लेयोट्रॉपिक जीन्स। क्वेश्चन नंबर 74, पेयर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन ड्रोसोफिला। कितने पेयर्स होंगे? उसमें 4 पेयर होंगे। टोटल क्रोमोसोम उसमें 8 होते हैं ड्रोसोफिला में। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें टोटल क्रोमोसोम की तादाद। Question number 79, the tendency of a gene in chromosome to remain together is called as linkage। Question number 40, the pairing question number 80, the pairing of homolochromosome is called synapsis। तो ये म्यूसिस के दौरान होती है सिनेप्सिस। Question number 81, mutual exchange of segments of chromosome is called as crossing over, यानी कि इसको हम क्रॉसिंग ओवर का नाम देते हैं। इलेक्ट्रॉन कैरियर नेसेसरी फॉर फोटोफॉस्फोरिलेशन दैट इज साइटोक्रोम। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी ये क्वेश्चन नंबर 83, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन मेल
और ग्रास होपर 23। फीमेल में 24 होते हैं और ग्रास होपर में 23 होते हैं, एक क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 85, नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन मेल 22 क्योंकि लास्ट जो पेयर है वो होमोलोगस नहीं है एक्स और वाई, इस वजह से 22 पेयर। क्वेश्चन नंबर 85, टीएच मॉर्गन वर्कड ऑन ड्रोसोफिला, तो उसने ड्रोसोफिला पे वर्क किया। 86 पर्सन सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस हैज डिफिकल्टी इन डिस्टिंग्विशिंग रेड फ्रॉम। Number 87, diabetes mellitus is caused by the deficiency of insulin. 8, when a normal male marries with a carrier female, which is the correct statement? Half of sun will be colorblind. तो ये कलर ब्लाइंड के रेफरेंस से बात की गई है। आपको पता होना चाहिए कि कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है और इसको हम स्मॉल लेटर से जाहिर करते हैं। 81, ये देख लेते हैं इसका नंबर क्या है। एन इंडिविजुअल विद कंट्रास्टिंग एलील इज कॉल्ड हेट। क्वेश्चन नंबर 90, हाउ मेनी जीनोटाइप्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय टू एलील्स कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। तो इससे 3 जीनोटाइप बनेंगे, कैपिटल ए का कैपिटल ए के साथ, फिर कैपिटल ए का स्मॉल के साथ, फिर स्मॉल ए के साथ। क्वेश्चन 1, एंटीजेंस आर आल्सो कॉल्ड एग्लूटिनोजेंस, या इनको दूसरा नाम इम्यूनोजेंस भी देते हैं। Erythroblastosis fetalis occur due to Rh incompatibility. 93, which of the following is an example of X-linked dominant trait? तो इसमें genetic। Question number 94, phenylalanine hydroxylase converts the phenylalanine into tyrosine. Tyrosine is present in the stomach. Number 95, the visible expression of hereditary constitution of an organism is called as phenotype. Number 95, 75% dominant and 25% recessive appear between capital A, small a, capital A, small a, beta आंसर इसका सही, इसका आंसर। Number 97, disease in which the blood does not clot names as hemophilia. Number 98, the sex mechanism in birds, that is GW mechanism. इनमें जो GW होता है वो फीमेल होती है, फीमेल में 2 तरह के एग्स बनते हैं और मेल के अंदर तमाम स्पर्म एक जैसे बनते हैं। 99, the chromosomal aberrations occur due to chromosomal non-injection, इसका आंसर डेल्टा होगा। That is 100 question, baldness in female is homozygous recessive trait और ये autosomal trait होता है दोनों में, मेल और फीमेल में, लेकिन फीमेल में ये homozygous recessive trait है और मेल के अंदर heterozygous dominant trait होता है। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके सामने 100 क्वेश्चन और उनके साथ साथ हमने आंसर भी डिस्कस किए हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।